إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین آئیے صدقہ فطر کے بارے میں جانیں گے ہم، اور صدقہ فطر میں غلہ ہی دینا چاہیے یا قیمت دینا چاہیے، اس بارے میں بہت سارے اختلافات موجود ہیں۔ تو ہم جو ہے راجح قول تک پہنچیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ تو آئیے جانیں گے صدقہ فطر کو اصطلاح شرع میں زکوٰۃ فطر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، نیز اسے زکوٰۃ رمضان، زکوٰۃ صوم اور فطرہ بھی کہتے ہیں۔ صیام رمضان کے خاتمے پر صدقہ فطر فرض کیا گیا ہے، جس کے دو بنیادی مقصد بتائے گئے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بتقاضائے بشریت اگر غلطی اور گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہو تو اس سے ان کی تلافی ہو جائے گی، یعنی جو ہماری روزے کی حالت میں بد کلامی، بد گفتگو یا پھر گالی گلوچ یا غصے کی حالت میں، جو روزے کی حالت میں غصہ ہو جانا، بہت ساری برے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں، تو یہ سارے لغو باتیں اور غلطیاں اور گناہ کا جو ارتکاب ہو جاتا ہے وہ صدقہ فطر سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ناداری اور مفلسی کی وجہ سے اس عمومی عید کی یعنی تہوار کی خوشیوں میں شریک ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، اس مقصد اسے جو ہے نا صدقہ فطر کے ذریعے ان کا تعاون کر کے ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ عید کے دن کمانے اور رزق جستجو سے بے نیاز ہو کر عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ صدقہ فطر قرآن و سنت اجماع امت کی دلیل سے واجب ہے، نیز اس کی مقدار صحیح حدیث کی روشنی میں 1 صاع غلہ بتائی گئی ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کیا معلوم ہوتا ہے، دیکھیے کہ ان سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقد او صاعا من زبیب۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تعد قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دونوں احادیث کا مفہوم یوں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں احادیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر قسم کے غلہ، جو، کھجور، کشمش اور پنیر سے 1 صاع نکالتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع غلہ اور جو اور کھجور زکوٰۃ فطر میں فرض قرار دیا ہے۔ اب صدقہ فطر میں قیمت دینا درست ہے یا غلہ دینا درست ہے، اس بات پر بہت ساری بحثیں آئی ہیں اور جو ہے نا بہت سارے قول اور اختلافات بھی آئے ہیں۔ تو ہم ایک نتیجے پہ یہ پہنچیں گے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ حدیث جو بسند صحیح حسن حدیث ہے ابو داؤد کی، وہ یوں ہے کہ حدیث میں صدقہ فطر کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ طہارت الصائم من اللغو والرفث وطعامہ للمساکین، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کی لغو بات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے نا بہت ساری قول آئے ہیں، بہت اقوال آئے ہیں، تو اس میں ہم جو ہے دیکھیں گے
कुछ अखबार यहाँ पे देखेंगे कि एक सा गल्ला या खजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बतौर करेंसी इस्तेमाल होती थी। जवाबन अर्ज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी करेंसी थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका फ़ितर को गल्ले के साथ ही मुक़य्यद किया, करेंसी के साथ नहीं। मालूम हुआ कि गल्ला व खुराक ही असल है। अगर करेंसी असल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंसी के साथ मुक़य्यद करते, जैसा कि बहुत सारी चीज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और अगर आप गल्ले को भी करेंसी मानते हैं तो माने, मगर इस करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में तब्दील ना करें, क्योंकि इसे शरीयत ने मुतय्यन किया है। अब अबू सईद खुदरी और जो है माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का इख्तिलाफ एक सा या निस्फ सा गेहूँ देने के बारे में है। तो इससे पता चलता है कि सहाबा कराम ने कीमत का एतबार किया। इसका जवाब ये है कि एक सा या निस्फ सा गेहूँ देने के बारे में इख्तिलाफ के बावजूद उनका गल्ला देने पर इत्तेफाक था, ना कि करेंसी देने पर। अब देखेंगे कि जो जमहूर यानी दूसरा कौल जो है ना, जमहूर आइमा इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि सदका फ़ितर में गल्ला ही दिया जाएगा, यानी गल्ला ही दिया जाएगा। देखिए अल-मुग़नी किताब में और अल-मजमू' किताब में इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे अंदेशा है कि कीमत देना काफ़ी ना होगा। और जब उनसे कहा गया कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कीमत कबूल करते थे, तो उन्होंने फरमाया इस बारे में कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को छोड़ देते हैं और फ़लाँ ने कहा कहते हैं, जबकि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ला फ़र्ज़ किया है। और अल्लाह ताला का इरशाद भी है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 32 में। मज़ीद फरमाया कि लोग फ़लाँ ने कहा कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ देते हैं। देखिए किताब अल-मुग़नी में। और इमाम इब्ने क़ुदामा रज़ियल्लाहु ताला क़ुदामा ने फरमाया कि जिसने कीमत दी तो काफ़ी ना होगा। और फिर इस बारे में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हमारे नज़दीक कीमत देना काफ़ी ना होगा। अल-मजमू' में देखिए। और जो है यहाँ पर शेख सालेह अल-फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह का कौल ज़िक्र करना फ़ायदा से खाली नहीं होगा। उन्होंने फरमाया, हमारे ज़माने में कुछ लोग इबादत को वो उसकी शरई हालत से बदलने की कोशिश करते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे सदका फ़ितर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अख्तिताम पर गल्ले से निकालने का हुक्म दिया, तो कुछ लोग गल्ले के बदले कीमत निकालने का फतवा देते हैं। ये इबादत को उसकी शरई हालत से फेरना है, क्योंकि सदका फ़ितर का एक ख़ास वक्त है और वो है लैलतुल ईद। ख़ास जगह है जहाँ पर निकालने वाला मौजूद है, ख़ास मुसर्रिफ़ है, इस जगह के मसाकिन हैं। एक ख़ास नौइयत व सिफत है, वो है गल्ला। तो उस इबादत को उन तमाम शरई एतबारात से मुक़य्यद करना ज़रूरी है, वरना वो इबादत ना तो सही होगी और ना ही इंसान उससे बरी ज़िम्मा होगा। तो इस तरह ज़हार क़िस्म निहार रमज़ान में जमा के कफ़ारा और सदका फ़ितर में गल्ला ही है, तो कीमत निकालने से वो अदा ना होगा, क्योंकि ये मनसूस इबादत को उसकी शरई कैफियत से बदलना है, जो कि जायज़ नहीं है। इस बात को अल्लामा ने मज़ीद बहुत सारी मिसालों से भी बयान किया। अब राज कौल की तरफ आते हैं कि राज कौल यह है कि सदका फ़ितर में वही गल्ला दिया जाए जो आम तौर पर लोगों की खुराक हो, यही राज है। तरजीह के इसबाब जो है ना, ये कुछ चंद बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात फ़ितर में गल्ला ही फ़र्ज़ किया है, जैसा कि बुखारी मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस में अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायतें मौजूद है, जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले बयान कर चुके हैं। और दूसरा ये कि दराहम व नानियर जो है अहद नबवी में भी मौजूद थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर को एक साफ़
अल्लाह के साथ मुक़ीद किया, जिससे साफ मालूम होता है कि गल्ला ही सदक़ा फ़ितर में असल है। तीसरी बात यह है कि सदक़ा फ़ितर मुतय्यना जिन्स की शक्ल में फ़र्ज़ शुदा इबादत है, तो दूसरी जिन्स नक़द वग़ैरह से निकालना काफ़ी ना होगा। जैसे कि चौथी बात यह है कि सदक़ा फ़ितर में ख़ुराक के बदले कीमत निकालने से ज़ाहिरी शुआर की बजाय पोशीदा सदक़ा बन जाता है। और पाँचवीं बात यह है कि सदक़ा फ़ितर को मिस्कीनों की ख़ुराक बताया गया है, तो ख़ुराक ही दिया जाए। अगर ख़ुराक की बजाय कीमत दी गई तो मुमकिन है कि लेने वाला कोई और सामान ख़रीद ले। एक और बात यहाँ पे वाज़े कर दूँ कि वो सामान में कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, तो असल जो सदक़े का जो मामला है सदक़े फ़ितर का वो फ़ौत हो जाएगा, जिससे जो है अमल ताबदी जो है हासिल न होगा। तो छठवीं बात यह है कि सदक़े फ़ितर में अगर कीमत दी जाए तो किस जिन्स की दी जाए, खजूर की दी जाए या जौ की दी जाए या किशमिश की या पनीर की। अगर जौ की कीमत दी गई है और लेने वाले ने पनीर लेना चाहा या खजूर ख़रीद लिया, तो ज़ाहिर सी बात है कि एक सा जो बताया गया है गल्ले का से कम हो जाएगा, कम हो पाएगा वो। और फिर अगर और सदक़ा फ़ितर एक सा मुतय्यन है, जबकि तो जब एक सा से कम हुआ तो सदक़ा फ़ितर का असल हक़ अदा नहीं होगा, क्योंकि अहद रिसालत में भी जो है ना जितनी भी बातें मैं बताई हूँ वो सारी बातों में इजनास की कीमत यकसा नहीं थी, जैसा कि आज भी यकसा कीमत नहीं है हर चीज़ की। ख़ुद खजूर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं जिसकी कीमतें भी बहुत किसी खजूर के जो है ज़्यादा कीमतें हैं, किसी खजूर के कम कीमतें हैं। तो एक खजूर की ही मिसाल से देखें कि खजूर की कीमत दी जाए या किस चीज़ की कीमत दी जाए, या दीगर सामान मसलन कपड़ा वग़ैरह ख़रीद लिया और तो गल्ला ना हुआ और सदक़ा फ़ितर में गल्ला ही मतलूब है, तो अगर उन्हें कपड़े ले लिया उस पैसों से या कीमत से या कुछ भी दूसरी चीज़ें, तो फिर जो सदक़े फ़ितर का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि गल्ला एक सा गल्ला दिया जाए तो वो फ़ौत हो जाएगा। फिर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का इस बारे में कौल है कि यही है कि सदक़ा फ़ितर में गल्ला ही दिया जाए। चुनांचा उन्होंने कीमत देने वालों पर नक़द करते हुए फरमाया कि कीमत देना शारा पर तहमत लगाना है और ये बताना है कि उनकी शरीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से बेहतर है और फ़कीर व मसाकिन के लिए ज़्यादा सूदमंद है। नौज़ुबिल्लाह, अगर ये मकसद हो तो कुफ्र है, जबकि उनका ये मकसद हरगिज़ नहीं है, लेकिन गफलत की वजह से इस तरह की गलत बातें जो है कुछ उलमा कर देते हैं। कुछ जो है ना कुछ लोगों से ऐसी गलत बातें हो चुकी है, जबकि उनका ये मकसद हरगिज़ नहीं है, लेकिन गफलत की वजह से इस तरह की गलत बातें करते हैं। बहरहाल सदक़ा फ़ितर में वही चीज़ें निकालना जायज़ है जो शारा ने नसाब बयान किया है, और वो है गल्ला, सिर्फ गल्ला ही है। तो ये था मुस्तफ़ाद यानी जामा तरासुल अल्लामा अलबानी फ़िल फ़िक़्ह के किताब से ये लिया गया है। ये सारी बातें इन तमाम वजूहात की बिना पर शुबहात से एहतराज़ करते हुए सदक़ा फ़ितर में गल्ला ही निकाला जाए, क्योंकि हुक्म रसूल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही है कि यकीनी मतलब पूरा यकीनी भी यही है। कीमत देना कम अज़ कम शक व शुबा से खाली नहीं है, वल्लाहु आलम। तो इसीलिए हमें चाहिए कि ईद की नमाज से पहले जो है ना सदक़ा फ़ितर अदा कर दे, या तो एक चांद रात को ही सदक़ा फ़ितर अदा कर दे, अनाज की शक्ल में चावल हो या आटा हो, गेहूँ अगर देंगे तो फिर पिसाने के लिए पैसे कीमत भी देनी पड़ेगी। इसीलिए बेहतर है कि आजकल रेडीमेड आटा भी मिल रहा है, तो वो उसके पैकेट से दे। और जो है ना एक सा गल्ला जो होता है आज के दौर के लिहाज से 2.5 किलो होंगे या 2.25 किलो होगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि सदक़ा फ़ितर में ज़्यादा जाए लेकिन कम ना जाए, तो इंशाअल्लाह। और एक सा का जो निकलता है वो 2.5 किलो